رسول اللہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے حسن میں اور حضرت یوسف کے حسن میں فرق کیا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب سنو، دل کے کانوں سے سننا، گہرائی سے سننا۔ اگر حسن مصطفیٰ ہمارے دلوں میں اتر گیا تو ہم رسول اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جس وجہ سے ہم یہاں بیٹھے یہ ہمارا بیٹھنا مقبول ہو جائے گا۔ آقائے کریم فرماتے ہیں عائشہ عائشہ سن عائشہ، اللہ نے اپنے نور سے جدا کر کے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، کچھ تو یہاں پر پڑھے لکھے دانش مند لوگ بھی بیٹھے اور کچھ مجھ جیسے کم عقل لوگ بھی بیٹھے، تو تاکہ بار بار جملے ریپیٹ کرنے سے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ کچھ جو مجھ جیسے کم عقل والے لوگ ہیں جو سمجھ دیر میں پاتے ہیں تو وہ لوگ بھی سمجھ لے صحیح آسانی طریقے سے۔ اس لیے تو میں جملوں کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ حدیث میں بار بار ریپیٹ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں عائشہ اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کر کے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نور کے 10 حصے کرے۔ کتنے؟ 10۔ پھر سب زور سے بولو۔ 10۔ اس نور کے 10 حصے کرے، 9 حصوں کو الگ کیا، ایک حصے کو لیا اور اس کے پھر 10 حصے کیے۔ 10 حصے پھر کیے، اب پھر 9 حصے ایک طرف کیے اور ایک حصے سے اللہ رب العزت نے یہ کائنات کو بنا دیا ہے۔ جو اب یہ آپ خوبصورت پھول دیکھ رہے ہیں، پھولوں میں چمک ہے، یہ محمد کا نور ہے۔ یہ ستاروں میں چمک ہے، محمد کا نور ہے۔ چاند میں چمک ہے تو محمد کا نور ہے، سورج میں روشنی ہے تو محمد کا نور ہے، اور یہ پہاڑوں کو بلندی ہے، محمد کی بلندی ہے۔ اللہ اکبر، یہ درخت کی اونچائی ہے، یہ محمد کی اونچائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ آسمان کی بلندی ہے، یہ اسی نور کا صدقہ ہے۔ یہ جو بلبلیں گا رہی ہیں یہ اسی نور کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو بھنورے گنگنا رہے ہیں یہ اسی نور کی آواز ہے۔ اللہ اکبر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سارے انسان و جن کو اللہ تعالی نے اسی نور سے پیدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دریاؤں کی موجیں یہ اسی نور سے ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو کھلتے ہوئے آبشار ہیں یہ اسی نور سے ہے۔ یہ پھولوں کا چٹکنا ہے، یہ کلیوں کا مہکنا ہے، یہ اسی نور سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صرف ایک حصے سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا اور یہ کائنات اتنی خوبصورت ہے، ہم اس میں لین ہو گئے ہیں، اب جو 9 حصے تھے ایک حصے سے 10 حصے ہوئے، اب ایک حصے سے 10ویں حصے کا جو ایک حصہ ہے اس حصے سے پوری کائنات کو بنایا، اور 9 حصے جو بچے تھے اس سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اسی لیے تو فرمایا گیا ہے کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا۔ اللہ کبیرہ، کہ میرے آقائے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، میرے آقائے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کا عالم کیا ہوگا جب 9 حصے ان کو ملے، ایک حصے میں سے جو 9واں حصہ ہے، 9 حصے ہیں وہ حضرت یوسف کو ملے، تو ان کا عالم یہ ہے بھوکا دیکھے تو وہ کھانا کھانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کی بھوک مٹ جائے، جو پیاسا دیکھے اس کے پانی پینے کی حاجت نہ ہو، اس کی پیاس مٹ جائے۔ کسی آپ محفل میں بیٹھے ہوں، پردہ ریز ہوں، اللہ اکبر اندھیرا ہو، پردے سے ہی وہ شعائیں پھوٹے کہ پوری محفل منور ہو جائے۔ اللہ اکبر، اور حضرت یوسف جب آپ زلیخا کے محل میں قدم رکھے تو عورتیں انگلیاں کاٹے نہیں، کاٹے نہیں، کٹ جائیں، خود کٹ جائیں۔ کاٹنا الگ بات ہے اور خود کٹ جانا الگ بات ہے۔ پیاز کاٹتے میں کٹ جاتی ہیں، آج کل عورتیں نازک ہوتی ہیں تو پیاز کاٹتے میں بھی کٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے حضرت یوسف کا حسن وہ تھا کہ عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ لی،
अपनी उंगलियां काट ली, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जब आओ कि जिसने देखा है उसने भी अपनी गर्दनें कटाई हैं, और जिसने नहीं देखा आज तलक के जो मोहम्मद के नाम पर अपनी गर्दन को कटा रहे हैं, ये मोहम्मद के हुस्न का ही सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिन देखे जब ये आलम है कि दीदार का आलम क्या होगा, कि मेरे आकाए करीम जब उनका मामला ये कि देखा और देख कर के कट गई, उससे पहले ना कभी कटी ना उसके बाद में कटी है, लेकिन आका के लिए देखा तो बद्र में कटा लिया, देखा तो उहद में कटा लिया, देखा तो खंदक में कटा लिया, देखा तो खैबर में कटा लिया, देखा तो सिफ़ीन में कटा लिया, देखा तो अल्लाह अकबर मैदान करबला में कटा लिया, कि वो सर कट रहे, वहां पर औरतें हैं और यहाँ पर मर्द कटा रहे। यहाँ पर कटा रहे, कटना और बात है और कटाना और बात है, कि मेरे आका का हुस्न वो हुस्न है कि वहां पर बिन देखे भी कटा रहे हैं और देख कर भी कटा रहे। जिन्होंने देखा बद्र में कटाया, उहद में कटाया, खंदक में कटाया, सिफ़ीन में कटाया, अल्लाह अकबर कबीरा कि करबला के मैदान में भी कटाया, और आज भी लोग जितने मोहम्मद के नाम पर अपनी गर्दनों को कटा रहे हैं तो ये बिन देखे कटा रहे हैं, यहाँ पर देख करके कटी। उसी को मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब, क्योंकि आका का हुस्न वो हुस्न है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्योंकि आज हम पर अजाब क्यों मुसल्लत हो रहा है, आज हम परेशानी के दहाने पर क्यों खड़े हैं, आज हम बीमारी के दहाने पर क्यों खड़े हैं, आज हम गुनहगारी के दहाने पर क्यों खड़े हैं, क्योंकि हम उसने मुस्तफा से आशना ही नहीं हुए हैं, हम उसने मुस्तफा की तरफ रुजू ही नहीं हुए हैं, हमने जाना ही नहीं कि आका की आंखें कैसी हैं, आका के लब कैसे हैं, आका के कान कैसे हैं, आपकी बीनी कैसी है, आपके लबे मुबारक कैसे हैं, आपके हाथ कैसे हैं, आपके कदम कैसे हैं, आपका शिकम कैसा है, आपकी जुल्फे कैसी है, आपकी अबरू कैसी है, अल्लाह अकबर आपके कान मुबारक कैसे हैं। मेरे इमाम ने जब देखा है, वो उन्होंने जाहिरी आंखों से भी देखा, वहां पर जब मदीना तैयबा में पहुंचे हैं, और आपने ख्वाब में भी बहुत जियारतें की हैं, वो जब आशिक ने देखा है अल्लाह अकबर कबीरा, तो वो उन्होंने ये भी कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अल्लाह अकबर कबीरा। तो जब हाथ को देखा अल्लाह अकबर, तो वो फरमाते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाअत में लाखों सलाम। आका के शिकम मुबारक को देखा तो आप फरमाते हैं कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आपके लब को देखा तो फरमाया पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। देखे हैं कान मुबारक जब देखे हैं, अल्लाह अकबर फरमाया दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। कि आपने उंगलियां देखी तो फरमाया नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आपने जुल्फे मुअम्बर देखा, उस पर भी बयान किया, आपने भौ शरीफ देखा तो उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। आपने आंख देखी उस पर भी सलाम भेजा, आपने कान देखे उस पर भी सलाम भेजा, आपने चेहरा अनवर देखा उस पर भी सलाम भेजा, आपने शिकम देखा उस पर भी सलाम भेजा, आपने कदम देखे उस पर भी सलाम भेजा, आपने हाथ मुबारक देखे उस पर भी सलाम भेजा, क्योंकि हमने कुछ देखा नहीं, अल्लाह अकबर कुछ देखा नहीं, इसलिए हम करीब ना हुए, और उन्होंने देखा है और देख करके वो आला 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 हजरत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और जो उनसे चमकता है तो इसी तरह से चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, सुभान अल्लाह। चमका दे चमकाने वाले, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, मेरा नबी चमक रहा है, और उसकी चमक से जिसकी चमक जिसके ऊपर वो चमक पड़ रही है वो भी चमकदार बनता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। वो हुस्न देखा, अबू बकर थे,
हुस्न देखा अबू बकर थे सिद्दीक अकबर बन गए, वो हुस्न देखा उमर थे फारूक आजम बन गए, वो हुस्न देखा उस्मान थे जुन्नूरैन बन गए, वो हुस्न देखा हैदर थे हैदर कर्रार बन गए, फातिह खैबर बन गए, बाबुल इल्म बन गए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हुस्न देखा बिलाल हबशी बन गए कि चलते दुनिया में है और कदम जन्नत में सुनाई वो गुलाम हबशी। अल्लाह अकबर कबीरा कि जो गुलाम है मार खा रहा है, कोड़े की भी मार खा रहा है, धूप में पत्थर भी आपके छाती पर रखे जा रहे हैं, और अहद अहद और मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ूंगा। और आका के हुस्न में ऐसे सराबोर हुए अल्लाह अकबर कबीरा, तो अल्लाह ताला ने वो शर्फ अता किया कि काबे की छत पर खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह। आका का हुस्न वो हुस्न है कि आका को अल्लाह ने तलवार नहीं दी, जैसा मैंने पहले भी बताया था। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तीर और कमान अता किया है। आपके जो अबरुए मुबारक हैं वो कमान के हैं, और आपकी जो पलके मुबारक हैं वो तीर के हैं, क्योंकि तलवार से जो वार होता है वो करीब वाले से होता है, और तीर का जो वार होता है वो दूर तक के जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। तीर जो होगा वो पास वाले को भी पार कर देगा, और जो दूर होगा उसको भी वो पार कर देगा। तो देखा नहीं आपने, जो पास में अबू बकर था वो भी फिदा हो गया, और जो दूर बैठा करन में वैसे करनी था वो भी इश्क में दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी इश्क में दीवाना हो गया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका का हुस्न, आज टॉपिक शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह 4 हफ्ते चलेगा। आका के हुस्न पर ही, आका के हुस्न पर बात होगी। लोग दुनिया पर बात करते हैं, और अंग्रेज मुफक्किर ने कहा ना कि 3 क्वालिटी होनी चाहिए, या 3 में से एक भी हो तो हम उससे इश्क करें, क्योंकि इश्क करना उसका हक हो जाएगा। इश्क नहीं करेंगे तो इश्क में हक तलफी होगी, उससे जफा होगी, उससे वफा नहीं होगी। तो हम आका के हुस्न को समझेंगे, आका के हुस्न को देखेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, आका के हुस्न को सुनेंगे, आका के हुस्न को तसव्वुर करेंगे, आका पर दुरूद पढ़ेंगे, तब हम आका के करीब हो जाएंगे। और जब करीब होंगे तो खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मेरा दिल और मेरा ईमान कहता है हम रसूलुल्लाह के करीब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह के बेशक। करीब हो जाएंगे। और कैसे करीब हो जाएंगे? फिर हम ये कहेंगे, लहद में रुखे इश्क शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। आका के हुस्न पर अब ये टॉपिक छिड़ा है। इंशाअल्लाह पूरा हुस्न, आका का पूरा हुलिया इंशाअल्लाह आगे बयान होगा। तो इंशाअल्लाह अब जिसको आका से मोहब्बत होगी, आका से इश्क होगा, आका का हुस्न, आका का हुलिया, आका की अबरू, आका की आंखें, आका के लब, आका के कान, ये जानने होंगे आका का चेहरा, आका का कद किस तरह था, तो वो जरूर सुनने हाजिर होगा, और उसको सुनकर ईमान की दौलत को मजबूत करता हुआ नजर आएगा। और उस दौर में जब आपको ये पता है कि हम आज तबाही के दहाने पर खड़े हैं, तो वो तबाही का दहाना कहाँ से रह जाएगा? क्योंकि अबू बकर ने इश्क किया है, वो सिद्दीक अकबर बने। क्यों बने? जब उनको पता हुआ कि ये मेरा महबूब है, ये इतना आला है, ये इतना अच्छा है, ये इतना खूबसूरत है, ये इतना बरतर है। क्योंकि और नबी जो थे, और नबी भी मखसूस थे, उनकी उम्मतें भी मखसूस थी, लेकिन नबी हमारा अफजल है, उसकी उम्मत भी अफजल व आला है। सुभान अल्लाह, बेशक। कबीरा कि मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वो उम्मत भी आला, और वो भी आला कि मेरे इमाम ने फरमाया, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और हमारा ऐसा नबी है कि जिसके आगे सबका हुस्न फीका नजर आता है, सबका हुस्न फीका नजर आता है। क्योंकि आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सबसे उम्र भी तवील मिली, सबसे खूबसूरती भी ज्यादा मिली है। अब लोग कहे कैसे कि आपकी उम्र तो 63 साल की है, 27 साल मिराज के लगा करके आपकी 83 साल उम्र है। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मैं कहता हूं नहीं, अल्लाह अकबर। कैसे? आका का हुस्न,
आका का हुस्न भी सबसे आला है, आका की उम्र भी सबसे आला है। क्यों? जिब्रील अमी एक मर्तबा आए, आका ने फरमाया जिब्रील अमी तू अपनी उम्र तो बता, तू अपनी उम्र तो बता। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्र बताने के लिए हजरत जिब्रील अमी कहने लगे कि मुझे इल्म नहीं, मुझे पता नहीं या रसूल अल्लाह कि मैं आपको अपनी उम्र बता दूं, लेकिन हाँ एक बात बता सकता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मुझको पैदा किया है तब मैंने मुझसे पहले एक सितारा तुलू होते देखा है जो 70,000 साल के बाद तुलू होता था, और मुझ जिब्रील ने उसको 72,000 मर्तबा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान तफसीरों में अल्लाह। आया है। तो हुजूर ने फरमाया कि वो जानते हो कि वो तारा कौन था? कहा या रसूल अल्लाह मुझे नहीं मालूम। कहा रब्बे काबा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, वो मेरा ही नूर था। सुभान अल्लाह। 50 साल के बाद निकलता था। उसका मतलब क्या था? जब 70,000 वो साल जब वो डूब जाता था तो वो सजदे में चला जाता था, और जब उठता था तो वो 70,000 साल के बाद उठता था और 70,000 साल तलक के रुका रहता था। तो जिसका सजदा 70,000 साल का हो उसकी इबादत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। इबादतों में कोई और नहीं है, उसके अहलो अयाल नहीं है, उसके घर वाले नहीं है, बस है तो उम्मती उम्मती उम्मती। वो प्यारा महबूब, वो हसीन महबूब, वो सबसे आला महबूब, जो आला महबूब है उसका हुस्न भी आला। और नबियों को अल्लाह ने मोजज़े किसी को 9 अता किए, किसी को कितने अता किए, किसी को कितने अता किए, लेकिन जब बात आती है आमिना के लाल की, जब बात आती है रसूलों के सरदार की, जब बात आती है अल्लाह अकबर कबीरा हम सभी को बख्शवाने वाले आका की, वो आका वो महबूब मुस्तफा जान रहमत की जब बात आती है तो अल्लाह ताला ने कोई मोजिजा देकर नहीं बल्कि सरापा मोजिजा बना करके भेजा। सुभान अल्लाह, बेशक, मोजिजा सुभान अल्लाह अल्लाह। कर रहा है, लेकिन रसूल आजम से दिन भर में सैकड़ों मोजिजे अल्लाह दिखा रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक। ये है मेरे मुस्तफा की शान। मुस्तफा को जब कोई जान जाता है तो वो जान लेता है कि मुस्तफा ने गुनाहों से रोका है, मुस्तफा ने शराब से रोका है, मुस्तफा ने जुए से रोका है, मुस्तफा ने जिना से रोका है, मुस्तफा ने अल्लाह अकबर गीबत से रोका है, मुस्तफा ने झूठ से रोका है, मुस्तफा ने दिल दुखाने से रोका है, मुस्तफा ने लगाया है तो नमाज पे लगाया है। मुस्तफा की आंखों की ठंडक नमाज होती है, तब हमें नमाज का मकसद पता चलेगा, क्योंकि महबूब को जो पसंद होता है उसको अपनी पसंद बना लेते हैं। क्योंकि जब खूबसूरती का हमें पता है कि उसके अंदर खूबसूरती, तो हम उससे प्यार करने पर मजबूर हैं। तो सबसे जो खूबसूरत है, जब उसकी खूबसूरती के बारे में पता चलेगा तो खुद बखुद हम उसके आशिक बन जाएंगे, हम उसके शहदाई बन जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हम उसको दिल दे बैठेंगे, और जब दिल दे बैठेंगे तो हमें ये फिर ख्याल होगा मेरे महबूब का दिल दुख जाएगा, मैं नमाज छोड़ूंगा मेरे महबूब का दिल दुख जाएगा, मैं गुनाह करूंगा मेरे महबूब का दिल दुख जाएगा। तो अब महबूब के दिल तक पहुंचना है, महबूब के हुस्न को पहले अपनाना होगा। मैंने पहले नमाज दी आप लोगों को कि नमाज का टॉपिक समझ लें, जब उसको समझा दिया उसका अजाब बता दिया। अब ये देख लीजिए कि महबूब के हुस्न में जब डूबेंगे नमाजें अपने आप पकड़ते हुए नजर आ जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सभी को जिस तरह से उम्मत मोहम्मदिया को सबसे आला बनाया है, सबसे बाला बनाया है, सारे नबियों से की उम्मतों से आला बनाया है, जिस तरह से हमारे नबी को सब नबियों से आला बनाया है, तो अल्लाह ताला हम सभी को तमाम लोगों में आला बना दे। आमीन। हमारे अमल को लोगों में आला बना दे, हमारे किरदार को आला बना दे, हमारे इखलाक को आला बना दे, हम सबकी वफादारी को आला बना दे, हमारे इश्क को आला बना दे, हमारी मोहब्बत को आला बना दे, हमारे सजदों को आला बना दे। तो अल्लाह से यही दुआ है कि जो भी हमने सुना उस पर अमल करने की, आका से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती शरीयत के मामले में बतकाज़ा बशरियत हुई है, अलल ऐलान तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।